You can join my room, reading. You can join my room. राधे श्याम, हरे कृष्णा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Only 13 students are interested. 14. Do we have more kids who are interested? No. Okay, very nice. Actually, Western Brahmins are always less in the society. Hare Krishna. Deity worship क्या है? Deity worship को अगर आप जरूरत पड़ेगी देखो. Deity worship जो है ना एक बहुत ही essential activity है. English और हिंदी? Who doesn't understand English? I'm very happy. I'm more comfortable in English. Deity worship is very important and very essential. We cannot understand English. So no, in English. Normally, in day-to-day life, when we see deity worship as an activity, even in a small society or anywhere, mostly people they have this mindset that Kanishk Adhikari are mostly those who are the pujaris. या they designate कि कनिष्क जो पुजारी होते हैं वो कनिष्क अधिकारी होते हैं. This is a big statement, no? Every acharya from our sampradaya had their deities. They worshipped them, right? And they all got perfection while worshipping their deities.
then why people they use this particular statement? You know why I'm starting from the negative aspect? Because we should start with a kind of icebreaker. Most of you are coming, oh yaar, deity worship, मैं भी deity worship सीखूंगा, I'll do this in bhakti, I'll do that in bhakti. But I'm telling you, the perception of people is this, that people who worship deities are mostly neophytes. कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वैष्णवों की 3 कैटेगरी होती है. समझ में आया? The 3 types of Vaishnavas: Kanishk Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttam Adhikari. Kanishk Adhikari Vaishnavas are those Vaishnavas who considered, like, who respect the Vaishnavas but don't mingle with them too much. Don't have much relationship with other devotees. They have a very small mentality. You know, Matsarya. Matsarya. You know what is Matsarya? Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, and Matsarya. What is Kam? Lust. When lust becomes little thick, it converts into Krodha, anger. Like I would like to have gulab jamun every day in my lunch. And every day, sometimes Goranga is coming, sometimes some Bhaskar is coming, bringing me very nice gulab jamuns. And one day, what is your name? Daksh. Daksh was supposed to serve me gulab jamun, and he did not serve me. Because I become so much lusty of gratifying my senses, I got angry. Why are you not giving me gulab jamun today? Why only a spoon of mishri? So kamaha, when become thick, gets into krodha. Kama krodh मिलके करते हैं लोभ, greed. काम क्रोध लोभ मिलके बनाते हैं मोह. मोह means attachment. काम क्रोध लोभ मोह मिलके बनाते हैं मद. मद means delusion. And काम क्रोध लोभ मोह मद पांचों मिलके बनाते हैं मत्सर्य. Matsarya is a kind of castle. Castle मतलब किला, which is very difficult to break. ठीक है? You can engage your kama in the service of Lord by doing Nirvadan Sanskar. You can, have very nice children who are Krishna conscious children. Krodh you can do to those people who are envious of other devotees, who are envious of the Lord. Lobh, you should have lollium to serve the Lordship. Moh, you should have attachment to Krishna and service to Krishna. Then mad, delusion from material world. You don't want to see. हाँ हाँ it's okay, no. Kama, Krodha, Lobh, Moh, Mad, all these 5 elements, the anarthas, you can engage in the service of Lord. But Matsarya you cannot arrange. You cannot engage. So when you are envious, Krishna will not accept you. In Bhagavad Gita, he is mentioning this thing. Arjuna, I'm giving you this knowledge because you're not envious. You're a non-envious person. That's the reason I'm giving you this knowledge. So they are Kanishk Adhikari Vaishnav, Madhyam Adhikari Vaishnav, they know what is right and what is wrong. They know who is a devotee and who is not a devotee. Okay? And Uttam Adhikari Vaishnavas are those who think that they are the most fallen people and everybody is a devotee. So mostly the Acharya level people, they are always Uttam Adhikari and they come down to Madhyam Adhikari and they do preaching. Yeah. So people they think sometimes the preachers also they have this mentality. What mentality? All the pujaris are Kanishk Adhikari. So why I want to tell you this? Because you should take this out of your mind. First of all, why they are Kanishk Adhikari?
पुजारीज के अंदर sometimes they have the tendency to accumulate. इन द सेंस की प्रसादों में रख लें हम लोग, भगवान को भोग लगता नहीं है, उससे पहले भगवान के प्रसाद पे नजर चली जाती है, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। हाँ, ठीक है। So this is a very lovely mentality, and this is, you know, one finger when you're pointing out towards one person, three fingers are towards you. So if you will tell that Gauranga is doing this, three people will stand and they'll say he does the same thing. Okay, so don't do that. Let's not break the flow. Okay. So, Kama, Krodha, Lobha, Mohamad, Masarya, and then Kanishkadikari. Second thing, pujaris, when they're worshipping the Lord so much, and when they are, you know, completely attached with the Lord, they sometimes start thinking that they don't need a Vaishnava association. They don't need Hari Katha. They don't need Vaishnava Sangha. They don't need Harinam Sankirtan. You know, so that is the reason sometimes they fall in the category of Kanishkadikari. But the Pujari are not Kanishkadikari. Neither Pujari nor the Purohit. I am, maybe as an individual, I can be Kanishkadikari Vaishnava, but Pujaris are not. Because whosoever Pujari I have been with and I have surrendered to, I've always seen them in a very high consciousness, very high state of consciousness. Because Pujari service start with the proper consciousness. Right? So this is very essential and very important for all of us to have this understanding who is Kanishkadikari and who is deity worship is, why do you want to do deity worship most? First of all, I want to know. What is the reason? बताओ बताओ हाँ बोलो। अपनी कॉन्शियसनेस को एक मतलब सेंटर में लाना कि आपके सामने पूरे दिन में मतलब एटलीस्ट उनके सामने तो सिंसियर और जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू Actually, it's a very good answer. Like you want to impact your consciousness and you want to engage your consciousness in the service of Lord. That is the reason you want to do. What's your name? Which class? Bolo. To surrender yourself and very good. I'm telling you, deity worship is a shortcut to fall in love with Krishna. Now, what again? भगवान की सेवा तो हर तरीके से कर सकते हो, खाली अर्चन से नहीं कर सकते, प्रसाद पाके भी कर सकते हो, हरिनाम संगीत भी कर सकते हो, और भगवान ने तो उससे भी ज्यादा इजी तरीका बताया, मन मना मन मन भक्तो मर्यादी मां नमस्ते। हाँ बोलो। लिम्बो भक्ति, यस, वेरी गुड। बट अगेन अगर मैं बोलूं तो most important limbo bhakti, but this is not the only limbo bhakti. But you're right. One of five most important. Most important, exactly. So, what does it mean? It simply means that because you know what? Have you seen Krishna? No. So, if you've not seen somebody, how can you love him? Then, because we cannot understand in our neophyte state how to fall in love with Krishna, या अपने कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम भगवान से किस प्रकार प्रेम करें, तो भगवान अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट करते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें, अर्चन कर सकें। Disciple means discipline, and archan is the shortcut to become disciplined.
Like, when I'm in Mumbai, when I initial days, when I used to go to Mumbai from Gurukul or old Gurukul, that time like I never used to get a proper room, but I used to get one dormitory. But dormitory I used to get a proper room, one single room, individual room. Nobody would be there. So most of the donors they used to call me in the evening. Ki, Prabhu, can you come in the evening? I am reaching home at 9 o'clock. Oh, just imagine, 9 o'clock, 8 o'clock. Mumbai people like that only, 7 o'clock, 8 o'clock, they're reaching home. So they're inviting me in their place at 7 o'clock, 8 o'clock in the evening, and then I have to go and meet them, because I started that pattern of education program that those days. So to meet them, I have to go sometime in the evening. And then my consciousness is like even at 11 o'clock. Suppose if I left home around 2 o'clock in the afternoon, meeting people in their offices, sometime at the beach, sometime at a coffee shop, and then reaching to somebody's home at 8 o'clock, and then getting done from there at 11 o'clock in the night. But my consciousness is 11 o'clock, my Giriraj is hungry. So let me just go home. Like, what happened one time? It was April and it was just a mango season came. But mangoes were not there in Vrindavan. तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला प्रभु जी I got very nice apple, sorry, mango. So can I give you with dinner? तो मैं रुक गया, बोला माता जी sorry, can you just give me like the mango like that only? Don't give me, don't serve me. तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, it is very strange because you don't do that way ना. आप किसी घर में जाके थोड़ा बोलोगे एक काम करो मुझे आम मत दो खाने के लिए, आप मुझे आम वैसे दे दो, मैं घर लेके जाऊंगा खाऊंगा. मतलब because this is a season first fruit है ना. मेरा मैंगो जो है सीजन में पहली बार मेरे को मिल रहा है और मैंने एक बार भी अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, तो हाउ कैन आई हैव. तो ये मैंने उसे बोला, शी वाज वेरी इंप्रेस्ड. मुझे नहीं पता कि मैंने बहुत बड़ी बात बोली. वो आज मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि हाँ, इट वाज अ बिग थिंग मे बी फॉर देम, फॉर मी इट वाज नॉट. मेरे लिए तो ये था कि जो भी आएगा, अगर जामुन आ गए, जामुन का सीजन आ गया, जैसे जामुन आएंगे तो मेरे जामुन सबसे पहले भगवान को ऑफर होंगे, देन ओनली आई विल ऑनर. तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, दिस कैन ओनली बी डेवलप्ड बाय वर्शिपिंग द जीसस. दैट्स व्हाई डीटी वर्शिप इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा यू बिकम डिसिप्लिन इन द सेंस नो मैटर व्हाट. आपको पता है कि आपको अपने डीटी को 7 बजे या 8 बजे स्नान कराना है, आपको पूजा करनी है, तो व्हाट विल यू डू? मुझसे हाथ बाहर निकालो. दिस इज नॉट ब्राह्मणी. हाथ झूठा हो गया, उसको किताब पे हाथ लगाएगा, फिर जब के वाला में हाथ भी डाल देगा. फिर कोई बंदा बोलेगा मुझे प्रसाद दे, वो हाथ में लेके प्रसाद दूसरे को देगा, अपना माँ प्रसाद खिलाएगा, फिर दूसरे कर्म लेगा. So just behave like a Vaishnava, behave like a Brahman. Brahman's mouth is not here and there like that, Relax. And we are from a society which is Krishna conscious society. We have to develop our consciousness overall. That's what the aim of our Krishna conscious activities are. This will make you fall in love with Krishna easily because you will, how do you fall in love with somebody? By serving the person. जैसे अगर आप टीचर को बहुत सेवा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली टीचर विल स्टार्ट बिकम अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू एंड देन यू विल आल्सो बिकम अफेक्शनेट टुवर्ड्स द टीचर. मैं उसी गोरा को बता रहा था, गोरा को अपने बेटे को समझा रहा था कि रिस्पेक्ट टीचर्स, देन यू विल सी लाइफ इज फन. कहते कैसे बाबा? बोला हमारे स्कूल में सबसे खतरनाक टीचर होते थे मानव सर, सबसे खतरनाक. और मानव सर जो थे वो फेमस थे कि वो बहुत, उनको होमवर्क ना करके आया तो बहुत पिटाई करते थे. और जिस दिन मैं होमवर्क करके नहीं आया ना, मैं मानव सर के पास जाके बोलता था सर अभी होमवर्क करके नहीं आया, कॉपी में चेक करना. सब बच्चे कॉपी करके आए हैं, लेकिन मानव सर को मैंने पहले ही बोल दिया कि सर आई हैव नॉट डन माय होमवर्क, सो प्लीज डोंट चेक द कॉपी, यू विल नॉट check the copy.
because we were so much affectionate towards each other. So I've seen that when we are in love with somebody, we do everything for that person. और ये जो love है ना, loving tendency, it's very easily developed when you're doing the Thakur ji seva. Then you know that you have to Thakur ji and you have to worship him every day, right? So when you have to worship your deities every day, you automatically become disciplined. अरे यार आज 7 बज गए, चल नहा लेता हूँ. कोई बात नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, unless I've offered something to the Lord, I cannot eat. अपने खाने के लिए भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन तो है. Eventually the consciousness will uplift, and then we will not be able to live peacefully unless we have offered something to the Lord. Right or wrong? हाँ, जैसे कि एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मुकुंद दत्त प्रभु जी, all his activities, देखा ना मुकुंद दत्त प्रभु जी को, मेरे शिक्षा गुरु जो है, जो आते हैं पगड़ी बांधते हैं ना, तो भी क्लास दी थी पीछे. प्रभु जी की हर एक एक्टिविटीज जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड राधा श्याम, राधे श्याम, राधा श्याम सुंदर. All his activities, like he'll get up in the morning, from Mangala Aarti, he'll do his japa, then he will, उनकी 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में ड्रेसिंग होती है, he'll dress the ladies, then he will go back home around 9 o'clock. Then again 11 o'clock he comes back. 11 to 1 o'clock he's in temple. Then 1 o'clock he'll go home, he'll honor prasadam, take rest. 5 बजे दोबारा से he will come. 7 o'clock again he will come to the temple. 7:30. So 3 to 4 times he's coming to temple. He's taking darshan of the deities. But the most important time is Shayan Aarti. He loves it so much, so he's mostly there in the Shayan Aarti. ठीक है? तो क्या है कि he likes to wake up the Lord. Sorry, he likes to see the Lord getting up, and then he likes to see the Lord going back to sleep. So then ये देखो, ये consciousness नहीं है, कितना easily develop हो गया. अब जब मैं प्रभु जी से ड्रेसिंग करता हूँ, you won't believe it कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक बहुत मोटा राधा रानी को ना अंगूठी पहना दी. उन्होंने आते ही बोला, है व्हाट आर यू डूइंग, सच अ हेवी रिंग, उठा दो इसे. बोला क्या हुआ प्रभु जी, शी इज अ किशोरी, शी इज ओनली 12 years old, हाउ कैन शी टेक द बर्डन ऑफ सच अ बिग रिंग. समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. जैसे कि हमारे यहाँ पे राधा रानी, वो हम गले में बड़े बड़े चोकर पिलाते थे, पहले लाते थे मुझे जो हाँ ज्वेलरी वही पहनाएंगे, लेकिन आज मैंने ठाकुर जी को मैंने क्या किया, बिल्कुल छोटा सा चोकर बनाया, फिर 3 मालाएं थी, एक बिल्कुल सेम बिल्कुल लाइट वेट. तो आज चेतन सिंह ने बोला, प्रभु जी आज राधा रानी ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई 12 साल की लड़की है. बोला बिकॉज यू हैव टू वर्शिप द लॉर्ड विद द प्रॉपर कॉन्शियसनेस. ही इज नॉट कि कोई मूर्ति है. जैसे कि लोग क्या करते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, मूर्ति ऐसे है, उनकी बात सुने, यहाँ पे वो लगा देते हैं अंगूठी. कौन पहनता है यहाँ पे अंगूठी, बताओ कौन पहनता है यहाँ पे अंगूठी, यहाँ पहनते हैं. अब स्क्रिप्चर्स के हिसाब से भगवान के हाथ में 3 अंगूठियां होती है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3. मुकुंद प्रभु जी मेक श्योर कि भगवान कृष्ण के हाथ में 6 अंगूठियां हैं, 1, 2 एंड 3. ठीक है, एंड ही मेक श्योर कि वो फर्क नहीं पड़ता कि वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, चाहे वो दिख रही है या नहीं दिख रही. वी आर नॉट डेकोरेटिंग द मूर्तिज, वी आर डेकोरेटिंग द लॉर्ड. राइट. कोई भी जैसे कि चुन्नी होगी, अब चुन्नी गलती से किसी ने ऊपर बिछा दी, ऐसे चुन्नी कौन पहनता है. सीधा बोलेंगे. कोई बंदा करेगा माला को ऐसे पहना देगा, दोनों की माला
हमारे गोविंद प्रभु ने क्या किया, गोविंद देव प्रभु ने कि गौनिताई का एक ही माला थी, दोनों के हाथ में पकड़ा दी। महाप्रभु के हाथ से ऐसे माला होती गई नित्यानंद प्रभु के हाथ में। हे रघु, प्रभु जी कहते हे रघु। बोला यस, व्हाट यू डूइंग? बोला व्हाट एम आई डूइंग? इज दैट द वे यू ड्रेस योर डीटीज? बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? इज दैट द वे यू पुट द garland? बोला लेट मी सी व्हाट हैपेंड। व्हाट्स स्केयर्ड? कृष्ण की माला एक तो यहाँ से जा रही थी और एक यहाँ से जा रही थी। अब क्या तुम ऐसे माला पहन सकती हो गले में? बाहर से out से। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, भगवान कृष्ण के हाथ ऐसे हैं, तो हमने ऐसे माला पहनाई कि वो बाहर से होती हुई ऐसे की, यहाँ से होती ऐसे की। नो, अगर भगवान कृष्ण साक्षात हैं तो उनको माला पहनाने का तरीका क्या होगा कि यहाँ से अंदर होती हुई जानी चाहिए माला। तो ये अगर है तो यहाँ के अंदर से जाएगी, यहाँ पे अंदर से, राइट? और क्या कोई दो व्यक्ति एक माला पहन सकते हैं? तो हाउ कैन वी पुट वन garland on राधा कृष्णा टुगेदर? मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, कॉन्शियसनेस के हिसाब से करना चाहिए। साक्षात कोई बंदा क्या करता है, यहाँ पर छुपा देगा एक अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी, यहाँ पे अंगूठी। मैंने बोला है गौरीताई के हाथ में यहाँ पर अंगूठी है, क्यों भाई? यहाँ पर अंगूठी है, क्यों? मैं तो कह रहा है छोड़ना यार। क्यों 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 छोड़ दूं? कह रहा है मुझे कुछ है नहीं बनाने के लिए, ठीक है रह देना है। बोला मैं बोला उसको कुछ चाहिए कह रहा हूँ, पर मेरा क्वेश्चन तो तुमसे है कि ऐसे क्यों है, समझा? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस डेवलप जब भी होगी जब हम लोग जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भगवान को सेंटर में रख के करेंगे। राइट और रॉन्ग? तो डीडी वर्शिप इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग डीडी वर्शिप की महात्म्य की बात करेंगे कि व्हाई डीडी वर्शिप इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम क्या करने जा रहे हैं आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक डीडी वर्शिप के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आप मेरे कितने लोगों बच्चों का उपनयन हो गया? हाउ मेनी गॉट उपनयन? गॉट उपनयन, उपनयन अब anybody's, we should actually get some kids जो कि ब्राह्मणी के लिए incline है, and if they're chanting 16 rounds or at least 12 to 12 rounds, they should get Upanayana Sanskar. उसमें you get Brahma Gayatri, at least you are eligible to do certain services inside the altar. हाँ, you cannot touch the deities, but you can even go inside the altar. Anyways, you should also get trained na, for that, before that. तो डीटी वर्शिप जो है 5 चीजें जो है बहुत एसेंशियल बताई गई है भक्ति के अंदर, ठीक है? पहला विग्रह सेवा, दूसरा मथुरावास यानी स्टेइंग इन वृंदावन, तीसरा साधु संगम, भागवत श्रवण एंड हरिनाम संकीर्तन की जय। These 5 things are very essential and very important for the DD for devotional service, है ना? उसके अंदर जो डीडी वर्शिप है वो बहुत एसेंशियल पार्ट बताया गया। It's very easy to fall in love with Krishna when you have your deities, ठीक है? अब जैसे कल क्या हुआ कि कल when we were dressing राधा श्याम सुंदर प्रभु जी आए, मतलब मोस्टली प्रभु जी ड्रेस आई असिस्टेड, तो श्याम सुंदर की जो वेल थी वो मैंने इस तरफ करी लेकिन हाथ से निकाल के गई ऐसे, तो मतलब प्रभु जी आई वांटेड टू हैव इट अपवर्ड कि ये वाली भी ऊपर की तरफ है, तो ये कहते कुछ नहीं घुमा दे हो जाएगा। बोले फिर राधा रानी किस तरफ आएगा? वो कहते राधा रानी कंधों तक आनी चाहिए वो जो वेल है, सॉरी वो जो चादर है, किसी की चादर होती है, वेल तो राधा रानी की होती है, चादर घूंघट राधा रानी का होता है, चादर होती है ना कृष्ण की, कृष्ण की चादर है वो कैसे आए? तो ये भी बहुत टेक्निकल चीजें हैं
कितना होना चाहिए ऊपर, कितनी ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान की माला लेफ्ट में जा रही है तो राधा रानी की माला भी लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर भगवान की माला राइट में है तो राधा रानी की माला भी राइट में होनी चाहिए। कभी कभी इन दोनों की माला बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, राइट। तो वे समटाइम्स डांसिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, समटाइम्स डांसिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो एनीवे, तो मैंने इमीडिएटली घर गया और घर जाते ही मैंने अपने डीटीज का ड्रेसिंग किया और मैंने कोशिश ये करी कि अपने ठाकुर जी का जो चदर थी, उतरी थी, उसको मैं उस तरीके से घुमा दूं ताकि जैसा मैं मंदिर में करना चाहता था श्याम सुंदर के साथ, नहीं कर पाया, तो घर में कर दिया मैं। तो मुझे शाम को आए कहते, अरे ये तुमने बिल्कुल वैसे ही किया है। बोला आपने बताया था ना वैसे ही किया। कह रहे इतनी क्लियर है ना कि मतलब 7:15 बजे मुझे इंडिकेट किया, 8:15 मैं अपनी ड्यूटी से वर्शिप कर रहा था, तो मैंने उसको उसी तरीके से ड्रेस कर दिया। तो क्या होता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये जो तुम्हारी डेवलप होती है कि अब अगले हफ्ते जब मैं ठाकुर जी की ड्रेसिंग करने जाऊंगा तो मैं ठाकुर जी को इस तरीके से डेकोरेट करूंगा। अब मैं ठाकुर जी को ड्रेसिंग करने उस तरीके से डेकोरेट करूंगा। यार वो जो थी ना, वो बड़ी अच्छी सुंदर माला थी, भगवान के गले में बहुत सुंदर लगेगी, वही पहनाऊंगा। ये जो कॉन्शियसनेस होती है, ये केवल और केवल पुजारी के पास डेवलप होती है, आम इंसानों के पास नहीं होती। इसीलिए कहता हूँ कि डीटी वर्शिप करना इज एक्चुअली ब्लेसिंग, कि आपके ऊपर ब्लेसिंग है ठाकुर जी की, कि आपकी कॉन्शियसनेस इस चीज में अटकी पड़ी है कि भगवान को क्या खाना है, भगवान को क्या खिलाना है, भगवान को क्या कपड़े पहनाने हैं, कैसे क्या करना है। जब लाइक टेंशन बनी रहती है कि अब नया त्योहार आ रहा है, अब ठाकुर जी को नई ड्रेस बनानी है। यू नो इट्स अ वेरी प्योर कॉन्शियसनेस, वेरी सिंपल कॉन्शियसनेस। बट जैसे हम लोग अपने त्योहारों में अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिलाते हैं, वैसे हम सोचते हैं हमारे ठाकुर जी के लिए भी नए कपड़े हैं, राइट। अच्छा, जैसे कि सिंपल सी चीज है, आपने भगवान को भोग लगा रहे हो, और आप भगवान को भोग लगा रहे हो दूध का रात को, और साथ में आपने रख दिए संतरे, गलत बात है ना? तो ये जो कॉन्शियसनेस है कहाँ से आएगी? ये पुजारी की तरफ से ही आएगी। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति जब जब ठाकुर जी की पूजा भाव में पूजा कर रहा होगा, तभी वो इस तरीके से समझ पाएगा उसको। जैसे एक और बड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक दिन क्या किया कि राजा रानी के गले में ना एक लॉकेट बना दिया जिसमें कृष्ण बने हुए थे, और कृष्ण के गले में लॉकेट बना दिया जिसमें राजा रानी बनी हुई है। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली देखते हैं हर मंदिर में, है ना। वो तो लोग आते ही बोले उतारो उसको, उतारो उसको। मैंने बोला ये क्यों? आप भी तो बनाते हो। कहते मैं जो बनाता हूँ वो हार्ट शेप लॉकेट है जिसमें वो बंद हो जाता है, और कृष्णा इज वेयरिंग राधा रानी लॉकेट बट इज क्लोज। राधा रानी इज मैरिड इन वन वे इन वृंदावन, राइट। शी इज मैरिड टू अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान कृष्ण की परछाई है। कहते जब अभिमन्यु धूप में चलता है तो उसकी परछाई जमीन पे नहीं पड़ती। हाँ, ठीक है परछाई ना। एक्चुअली में ब्रह्म विमोहन जब लीला हुई थी तो सारे के सारे ग्वाल बाल कृष्ण बन गए थे। तो पूर्णमासी को ही पता था खाली बलराम जी के अलावा कि जितने भी बच्चे हैं ये कौन है, कृष्ण है। ठीक है, तो उन्होंने फटाफट क्या बोला कि ये काम करो, सारे के सारे अपने लालाओं की शादी, अपनी लालियों की शादी कर दो। क्या कर दो? शादी कर दो। तो सबने बोला कि अरे ये कैसे पॉसिबल है? कहते अगर तुमने अभी शादी नहीं करी तो तुम्हारी लाली कभी भी शादी नहीं कर पाई। इसलिए जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी उस समय वो कृष्ण के साथ हुई थी। ठीक है, so don't get confused कि राधा रानी was married to somebody else. She was married to Krishna himself, but Abhimanyu who was a shadow of Krishna. ठीक है, and there is no lust in Braj the way we see कि ब्रजवासियों की बीवियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। None of the Gwalwala ever touched their wives because they were all Krishna's wives. With the proverb of Yoga Maya, nobody was joking around, nobody was talking, nobody was doing anything to the Braj gopis.
ठीक है, एनीवेज लेट्स कम बैक। तो प्रभु जी ने बोला राधा रानी इज मैरिड, हाउ कैन शी रोम अराउंड इन द होल जावत, यू नो द विलेज ऑफ राधा रानी इज बरसाना, बट नो, हर ससुराल इज जावत। How can Radha Rani roam around in Javat with the open locket of Krishna? Can you see the consciousness? एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी पूर्णिमा आती है, ठाकुर जी के कपड़ों का कलर क्या होता है? व्हाइट, ताकि पूर्णिमा के चांद के अंदर वो सफेद रंग के जो कपड़े हैं वो मर्ज हो जाए और दिखाई ना दे, कोई पहचान ना पाए कि राधे श्याम देव गोइंग टू मीट ईच अदर। और अमावस्या में बिकॉज काली रात होती है तो उसमें दे आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, ताकि nobody can see who is going to meet whom in the night। ठीक है, तो इस तरीके से हम भावमयी सेवा और प्रेममयी सेवा कर सकते हैं when we are doing deity worship, right? Any doubt, any question, any problem? बताओ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मिनट। हाँ, किसी को क्वेश्चन है इस चीज से लेके अभी तक जो भी डिस्कशन किया? हाँ पूछो, पूछो। अच्छा, किसी को प्रश्न है? नहीं। तो we are trying to make, we'll try to make this session, मतलब ऐसे तो 3 दिन का ही, we'll try to make it as productive as we can। हाँ बोलो। ये वो अभिमन्यु नहीं है, ये अभिमन्यु का नाम है। राधा रानी की सास का नाम है जटिला और ननंद का नाम है कुटिला, कुटिला, जटिला और कुटिला। जटिला और कुटिला और अभिमन्यु जो है दूसरा अभिमन्यु, ये वो अभिमन्यु नहीं है, पांडव अर्जुन वाला अभिमन्यु नहीं है। ठीक है, दिस इज उसका तो जो डीडी वर्शिप है उसकी बहुत महात्म्य है जो कि अलग अलग शास्त्रों में दिया गया है। और उसमें एक स्कंद पुराण के अंदर सनत कुमार मार्कंडेय संवाद है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि विशिष्ट सर्वधर्माच धर्मो विश्वर्च न निराम सर्वज्ञ तपो होम तीर्थ स्नानश्च यत फलम तत्फलम कोटि गुणितम विष्णु सम पूज्य चाप्नुयात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन नारायण निहार्चयेत्। मनुष्यों के लिए विष्णु पूजा सभी धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म है। सभी प्रकार के यज्ञ तपस्या होम एवं तीर्थ स्थान आदि के द्वारा जो फल मिलता है वो एक बार विष्णु पूजा करने पर उस फल से कोटि गुना फल मिल जाता है। ठीक है, इसलिए संसार में विशेष प्रयत्न के साथ नारायण की पूजा करनी चाहिए। श्री विष्णु अर्चनम ये तु रघुवंती नरा भुवि ते याति शाश्वतम विष्णु रानंदम परमं पदम। विष्णु रहस्य में कहा गया है इस संसार में जो मनुष्य विष्णु सेवा में नियुक्त है, द पर्सन हु इज चूजन टू वर्शिप
द लॉर्डशिप, वे सब भगवान के नित्य आनंदमय परम धाम को प्राप्त करते हैं। जिन जिन लोगों की सेवा है अर्च विग्रह की, वो डेफिनेटली भगवान के धाम जाएंगे जाएंगे। ठीक है, हरि बोल। संसारेऽस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु भयाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकं वादिभिः स्मृतम्। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ब्रह्म नारद संवाद में कहा गया है, भगवान वासुदेव की पूजा ही जन्म मृत्यु के भय से परिपूर्ण इस महाघोर संसार से उत्तीर्ण होने का एकमात्र एवं सर्ववादी सम्मत उपाय है। This is the only one easiest way to get delivered in this material world. ठीक है? I'll appreciate everybody should have a copy of pen to make the notes tomorrow. You know, it's very important. It will, you know, these things will remain with you. अब मेरे को दिखाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए करो तो मजा आएगा। इथम ही प्राप्त उत्थानात् पर्यन्तं शयनावधि श्री कृष्णं पूजयन् सिद्ध्यर् सर्वार्थोस्य प्रियो भवेत्। विष्णु पुराण और वे सगर संवाद में बोला गया है, जो व्यक्ति प्रातः काल से आरंभ कर शयन काल तक प्रतिदिन श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो समस्त प्रकार की सिद्धियां ऐसी प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के प्रिय भाजन होते हैं। They are very dear to the Lord. ठीक है? अच्छा, तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि why we have to do deity worship. Deity worship is very essential and very important, and there are 5 angas of deity worship. Panchang puja. You know what is Panchang puja? बताओ, what is Panchang puja? Okay. That is Panchang puja. हाँ, ये वो है ना पंच उपचार पूजा। पंचांग What is Panchang puja? एक पार्ट हाँ, और उसके बाद आता है कंपनी का करना, मतलब नहीं, प्रिपरेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस। देखो पंचांग पूजा, अब हम लोग गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज नाउ। ठीक है, अब मेरे पास, आई एम सो सॉरी कि मेरे पास स्क्रीन नहीं है शेयर करने के लिए। वही है, हाँ। ईमेल एड्रेस जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, ईमेल फाइल है। गूगल मीट हो गया, हो गया, प्लीज। So what are the DDs? What do you mean by DDs? Very good. What is it? What do you mean by statue? Murti. Are we allowed to do Murti puja? Yeah.
नहीं सुनो, मूर्ति वेलकम, मूर्ति पूजा, हाँ मैं भी सुन, मूर्ति पूजा, व्हाट इज मूर्ति पूजा? मूर्ति और विग्रहों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूर्ति और विग्रह? 309 आपने ई ऐड कर दिया एक्चुअली सामने 309 PGIS dot IT डॉट dot yes I डॉट PGIS IT 309 हाँ, so Arch Vigraha is something which you can install and do Pran Pratishtha. And Murti is Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi. These are the Murtis. And we are not supposed to worship the Murti, but we are rather supposed to worship what? Exactly. Arch Vigraha. It's very important for everybody to have the proper understanding. Okay? So, to bestow his causeless mercy upon the living entity, the supremely compassionate Swayam Bhagwan, he manifests himself in the form of deity. The deity of Bhagwan is identical to the eternal form. Therefore, it is mentioned in Sri Chaitanya Chaitamrita, Prasima Nahatumi Sakshat Vajendra Nandana. My Lord, you are not a statue. Pratima Natumi. आप लोग प्रतिमा नहीं हो, आप क्या हो? यू आर डायरेक्टली द सन ऑफ महाराज नंदा. भगवान कहते थे, चैतन्य बाबू कहते थे, आई नो ओनली टू नेम्स ऑफ कृष्णा, ब्रजेंद्र नंदन एंड श्याम सुंदर. Then the deity of Krishna is none other than Brajendra Nandan Shri Krishna himself. Despite their being non-different on the basis of their variegated pastimes, there exists a mutual distinction between them. You know how many types of deities we have? Forward. Are you go? We have 8 kinds of deities. How many types of deities we have? 8. Very good. One is the carved from the marble or stone, which we see around. Second is carved from the wood. Daru. So Jagannathpuri? Mumbai, Amchi Mumbai. Very good. And then made of iron, gold, or any other metal. कोई धातु होती है पंच धातु, कोई होती है अष्ट धातु. Some deities are made of panch dhatu, some deities are made of ashta dhatu. Some deities are made of gold, silver, brass. Some deities are made of copper. Yes. Painted deities that we call chitrapat. क्या कहते हैं? चित्रपट. Photographs. हाँ जैसे फोटोग्राफ है ना, हम लोग जब कभी वो दामोदर में होते क्या करते हैं? इस फोटोग्राफ को ही वर्शिप करते हैं. मेड ऑफ सैंड, जैसे गणपति बनते हैं, यू नो, एंड देन वी डाइल्यूट देम, राइट? मेंटली कंसीव्ड, यानी कि इन योर माइंड यू मेक द deities. That is called Mansi Seva. In your Mansi Seva, in your mind, you worship the deities with whatever you feel like worshiping with. चलो कावेरी जल का पानी डालो भगवान के ऊपर, चलो गंगा जल डालो, यमुना डालो, सरस्वती जल का पानी डालो, चलो सतलुज नदी का पानी डालते हैं, चलो इसके अंदर हम लोग हम ब्रह्मपुत्र का पानी डालते हैं. You know, anything, whatever you feel like. थोड़ा भगवान को क्या खिलाना आज? दाल मखनी, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर. Go whatever you want to worship the Lord with. I'll tell you the secret.
मानसी सेवा का सीक्रेट. Then the made of gems, pearls and jewels. ठीक है. Detail of statue definitely it is down there already clear. ठीक है. Why do we need archanam? Definitely. Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam, Padasevanam. Archanam, Vandanam, Dastam, Sakram. Atmanivedanam. क्या हुआ? अच्छा. Whatever. तो हम लोगों को पता है नवदा भक्ति जो है. अच्छा उसमें बताओ अर्चन के आचार्य कौन है? वी हैव नवदा भक्ति राइट. श्रवण के आचार्य कौन है? किसने अपने जीवन में श्रवण करके दिखाया? परीक्षित महाराज ने. वेरी गुड. कीर्तनम किसने अपने जीवन में भगवान की ग्लोरीज को जाकर सुनाया? सुखदेव गोस्वामी. सुखदेव गोस्वामी वृद्धासुर. सुखदेव गोस्वामी थी आचार्य फॉर कीर्तन. विष्णु स्मरण हर स्थिति में भगवान को याद रखने की जो कैपेसिटी थी. महाराज. पाद सेवनम लक्ष्मी जी. She is massaging the feet of Krishna all the time. Wow. So nice to massage on feet sometime. ठीक है. पाद सेवनम हो गया. अर्चनम बताओ. अम्बरीश महाराज जब वो वर्शिप करते थे ठाकुर जी की, कभी कथा सुनाएंगे. अम्बरीश महाराज की कथा सुनना. क्या रीति वर्शिप करते थे वो नवदा भक्ति के अंदर करते थे. और क्या वर्शिप करते थे वो रीति से. वंदनम प्रेयर्स. चुप रहे बोलने दे बच्चों को. क्या बोल रहा था? वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी. तुम्हारे को अक्रूर जी की प्रेयर्स इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी जब उन्होंने प्रेयर्स करी थी. जब उनको लेने आए थे भगवान ने बोला कि आज से आप बचा रहे हैं अर्जुन को. ठीक है. दास्यम साक्ष्यम नहीं. अर्जुन अर्जुन सुदामा नहीं. और आत्मनिवेदन जिसने सर्वस्व दे दिया भगवान को, बलि महाराज. तो ये जो 9 आचार्य है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें अर्चन के जो आचार्य थे वो कौन थे? बलि महाराज. अर्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द 5-fold name of the devotional mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu. कि one should with full faith lovingly worship the lotus feet of the deities. One should relish the meaning of the Srimad Bhagavatam. वही बताया थे पंचांग भक्त हमने बताए थे अभी, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, आपको याद रखना चाहिए. साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन. अगेन वही बात. सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम. जन्माय यही पंचेर अल्प संग श्री चैतन्य चैतामृत के अंदर लिखा. ठीक है. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं बताता हूँ हमेशा. इजीएस्ट वे टू फॉल इन लव विथ लॉर्ड. ठीक है. इजीएस्ट वे टू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड. आप कुछ देख कुछ खा रहे हो तो भगवान की तो आपकी नजर चली जाती है. क्या खा रहा है? जो भगवान अजीत गाली नहीं खा रहा. सिर्फ बर्गर खा रहा हूँ. राइट. तो एक्चुअली हमारी टेंडेंसी है ना पाप करने की, या किसी को क्रिटिसाइज करने की, या अगर हमारे अनर्थ हैं तो दे गेट डाइल्यूट व्हेन वी आर डूइंग डीटी वर्शिप. इजीएस्ट वे टू सर्व द लॉर्डशिप. भगवान की सेवा करने का बहुत आसान तरीका होगा. इजीएस्ट वे टू मेक अवर लाइफ रेगुलेटेड. इजीएस्ट वे टू इंटेंसिफाई अवर श्रवण एंड कीर्तन. एक बात ध्यान में रखना बच्चों,
डीटी वर्शिप का जो बहुत एसेंशियल जो आउटकम है वो ये निकलता है कि डीटी वर्शिप करने से व्यक्ति जो है वो मानसिक सेवा कर सकता है ठाकुर जी। अमानी ना मान देन कृष्ण नाम सदा लवे, बजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीब है। कुछ लोग अर्चन करके ही अर्चन सिद्धि प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य सबके पास विग्रह थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, they all had the Shri Vigrah, but at one point of time they gave up the deities. They gave away the deity worship, right? And then they went to what? मानसी सेवा। तो हमें भी करना पड़ेगा एक टाइम पे आगे, ठाकुर की अर्च विग्रहों की सेवा को त्याग के अपने मन में ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ेगी। अब मैं अगर बोलूं हाउ डू यू मेक अ टी, हाउ डू यू मेक गुलाब जामुन, या हाउ डू यू मेक हलवा, तो मैं पूछूं इससे गौरांगा हलवा कैसे बनाता है, गौरांगा बोलेगा आंखें बंद करके कढ़ाई लो, कढ़ाई रखो, गैस जलाओ, उसमें पहले आप नहीं, पहले सूजी डालो, सूजी को हल्का सा भूनो, उसके बाद उसमें घी डाल के उसको घी में भूनो, और फिर गरम गरम फिर तो चीनी डाल दो थोड़ा सा, फिर गरम गरम पानी डाल दो, तो उससे हलवा बन के तैयार हो जाएगा, फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दो, राइट। तो गौरांगा ने क्या किया, ये एक्टिविटी को इतनी बार किया अपने जीवन में कि जब उसको मैंने बोला कि तू वैसे बना के खिला की, बोले ये क्या नाम है हलवा, तो हलवे में माइंड माइंड में उसने हलवा बना दिया, राइट। बोले अगर उसको इतना ही पता होगा कि अभी 2 मिनट 3 मिनट रहे, मैं 3 मिनट में सूजी अगर 3 मिनट से ज्यादा भूनूंगा तो जल जाएगी, तो वो आपको 15 मिनट तक ये नहीं कह सकता मैं सूजी भून रहा हूँ। राइट और रॉन्ग। तो मानसी सेवा is what? When you're doing the service in the practical world, and when you're not able to do it practically, you can do with your mind. Right? Easiest way to attain स्वर्ण दशा। स्वर्ण दशा मतलब डेफिनेटली मानसी सेवा, ठीक है। इट इज वेरी हेल्प्स टू इंटेंसिफाई योर श्रवण कीर्तन, क्योंकि डीटी वर्शिप ना पॉसिबल ही नहीं है अगर हम लोगों ने श्रवण और कीर्तन ना किया। समझ रहे हो, बड़ा गुह्यम ज्ञान है ये, अगर समझने में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। श्रवण और कीर्तन नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भगवान को 56 भोग में क्या क्या खिलाना है, या भगवान को क्या पसंद है खाने में, कैसे बताओगे? हाउ विल यू फाइंड आउट, है ना। पता चलेगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा भगवान मक्खन खाते हैं, मिश्री खाते हैं, तो तुम बोलोगे चलो सुबह सुबह भगवान को कलेव करवा दो, क्या खिलाओगे? श्रवण किया तुमने। एक बार श्रवण की कहानी सुनाता हूँ तुमको। एक बार एक चोर था, खानदानी चोर थे वो, तो उसके पिता मर रहे थे, कहते लाला मैं जा रहा हूँ, तू तो बड़ा भोलो है, हाँ, चोरी करने में तो नहीं कोई कोई वो ना है, लेकिन तू बहुत भोला है। तो एक बात ध्यान में रखिए, जहां पे तू वो देखेगा ना तिलक वाले लोग, उनसे कोई संग ना करियो, वो जो कछु बोल रहे हो कान बंद करके निकल लियो, जो तुमने एक बार उनके मुख से कुछ सुन लिया तो बर्बाद हो जाए हो। चला ठीक है बाबू, यही करूंगा मैं। अब क्या हुआ कि एक दिन वो एक आश्रम में चोरी करने गया। अब आश्रम में बीच में बरामदा था, बाकी सारे कमरे चारों तरफ। अब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाए चोरी करे, लेकिन बीच में हरी कथा चल रही थी। हरी कथा में उसने बोला तो ठाकुर जी को यशोदा मैया ने तैयार किया, उनके पहले पैरों में सोने की पायल बनाई, फिर उनकी कमर के ऊपर हीरो से जड़ी हुई कमरबंद बनाई, फिर ठाकुर जी के गले में एक नौलख का हार पहनाया, हाँ, हीरो का हार बनाया, उन्होंने हीरो का हार बनाया। फिर उनके कानों में उन्होंने बड़े बड़े कुंडल बनाए जो कि हीरो से जड़ित थे, उनके हाथ में सोने के कड़े थे जिनपे अलग अलग तरीके के स्टोन्स लगे हुए थे। फिर भगवान के सर पे जूड़ा बना के उस जूड़े को मोतियों से बांध के यशोदा मैया ने उसपे मूल धारण करा दिया। कि तो मैं जामे क्या कर रहा हूँ। कि तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे सब लोगों के कपड़े चोरी कर रहा हूँ, किसी के एक आना किसी का 2 आना, हाँ, किसी की चप्पल किसी के पुराने कपड़े, जामे का चुना है वो। ये राजा जी जो ये जो यशोदा मैया का लाला है, इसको ढूंढता हूँ और इसको पकड़ता हूँ।
उसने बोला चुपचाप जाके बैठ गया। महाराज जी एक प्रश्न है, कहते जो यशोदा के लाला की बात कर रहे हो कहाँ मिले हो? कहते भाई वृंदावन में मिले हो, चला जा। आ गया वृंदावन में। अरे भाई तुमने यशोदा का लाला कहाँ रहे हुए? वहां को रहे हुए हैं, वहां को रहे हुए हैं, जामे रहे हुए हैं, जामे रहे हुए हैं। हर मंदिर में जो भगवान कृष्ण है यशोदा नंदन भी तो है वो। भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो, ना मिलो, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। एक दिन भटकते भटकते भगवान उसको मिल गए और उससे बोला कि अरे यार तेरे को कितना ढूंढा मैंने। तो उसने बोला क्या चाहिए तेरे को? और कन्हैया ने पूछा छोटे से, कुछ नहीं मुझे तुम्हें फर्क कड़े उतार के दे। कड़े उतारे, फिर उनके पैरों की पायल उतारी, फिर कमर की कमरबंद उतारी, फिर गले का माला उतारा, कानों के कुंडल उतारे, फिर बालों को चेन जुड़ा जो था उसमें से मोती की निकाल लिए। तेरा धन्यवाद, अब मेरा जीवन सफल हो गया। अब जाने लगा, कहता यार तो अच्छा ही लग रहा है यार। तो एक काम कर, कमर बंद तो फाड़ ले। जो ठाकुर जो नंगे होते थे कमर बंद बनी होती थी खाली, कमर बंद बांध दी। यार तेरे पैर बड़े सुने सुने लग रहे हैं, चल एक काम कर तुम पैरों में भी बांध ले अपने, पायल पहन ले, कोई बात नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। तो हाथ भी तेरे सूखे सूखे लग रहे हैं, तो ले ये कड़े भी पहन ले, ठीक है। और ये करते करते उसे भगवान का पूरा श्रृंगार वापस कर, भगवान प्रकट हो गए। ओ भाई साहब वो इतना रोया, भगवान की याद में भड़कते भड़कते वृंदावन में उसने शरीर त्याग के अपना भगवत प्राप्ति कर। तो ये है स्वर्ण दशा, स्वर्ण श्रवण और कीर्तन, जिससे हमारी स्वर्ण दशा आ सकती है जीवन को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, very essential for us to have love for Krishna, and it can only come while worshipping, while doing the Shravan or Kirtan. ठीक है? Any question? आज की क्लास में बोर तो नहीं हुए? नहीं। अपना कल से हम टेक्निकल बातें करेंगे, पंचांग पूजा की बात करेंगे, व्हाट इज पंचांग पूजा, और पंचांग पूजा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जो कि एज अ पुजारी हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर ये 3:30 से 4:30 का टाइम नॉर्मली फ्री होता है तो कार्तिक के फर्स्ट वीक के अंदर वी कैन हैव वन मोर क्लास ऑन वैष्णव एटिकेट्स, ताकि यू शुड लर्न हाउ टू लिव एज अ वैष्णव। क्वेश्चन लेट हो गए? हाँ बोलो। उसके बाद में आपको सुलावन आचार्य बोला, आचार्य भगवान के ऐसे दोस्त श्री राम है, सुदाम है, मधुमंगल है, भगवान के दोस्त तो कृष्ण है, विशाल है, भगवान के कितने सारे दोस्त हैं, सुबल है, साख्य है। भाव के अंदर भी एक चीज होती है कि हर रिलेशनशिप के अंदर हाउ सेल्फलेस यू आर, दिस इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। तो अगर हम नवदा भक्ति देखेंगे तो उनमें सब लोगों ने भगवान की, चाहे वो श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे विष्णु स्मरण हो, चाहे पाद सेवन हो, चाहे रचन हो, चाहे वंदन हो, चाहे साख्य हो, दास्य हो या आत्मनिवेदन, ये 9 के 9 आचार्यों ने भगवान की भक्ति जो है हेतु की करी है, समझ रहे हो। इवन सुदामा की भक्ति जो थी वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं। हाँ, इवन ध्रुव महाराज की भक्ति भी प्योर डिवोशन नहीं। तो ध्रुव महाराज ने जो भक्ति शुरू करी थी वो अपने पिता को डिफीट करने के लिए, पूरे दुनिया के राजा बनने के लिए करी। ये प्रोस्पेक्ट है, ज्यादा सोचो मत, तुम बहुत छोटे होगी, लेकिन अगर तुम्हें अभी से पता होगा तो तुम भविष्य में यू कैन एनालाइज थिंग्स मच बेटर वे। तो इसी तरीके से सुदामा जो है वो भी अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान के पास गया, चाहे वो देना नहीं चाहता था, भगवान को बता नहीं चाहता था कि मैं कंदन लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, थोड़े चावल लेकर आया हूँ कुछ है, he never wanted to say that to the Lord,
but he had the intention ना. और प्रॉब्लम पता है क्या है? Krishna will not accept what you're offering him. He will accept your consciousness. What he will accept? The consciousness. वो अपना पीछे वाला देखो और पीछे वाला देखिए क्या दोबारा कर क्या छुपा के रखे, ठीक है. बात वो नहीं है, बात ये है कि उन्होंने घर से शुरू किया था, इसलिए किया था ना कि लेट मी गो एंड मीट माय फ्रेंड. इतना बड़ा फ्रेंड है मेरा, ही इज सच अ बिग किंग. कुछ हेल्प हो जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी, राइट. बताऊंगा. कोई रिलेटेड क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है? पीताम्बर में क्वेश्चन है, सबको सब पता है. हरी बोल. हैव एनी क्वेश्चन? नो. सर बताऊंगा ना टुमारो. You know, you should not be sitting in the DT worship class with a T-shirt of Superman. Right? Right or wrong? It's up to your consciousness how much you want to uplift it, right? Don't take it personally. Okay, I know you from a very long time when you were a small kid. So what I'm trying to tell you here is that people who are eating onion garlic is not that's not the question. The question is that they are at least worshipping the Lord. While worshipping the Lord, at one point of time they might uplift their consciousness and they will understand what mistake they are making. You know why people like to worship Lord Gopal? That's the cheapest deities available in the market. 250 में मिल जाते हैं. एक ड्रेस में की 300 रुपए 50 रुपए की 100 रुपए की आ जाती है. हर बंदा उठा के ले आता है. लड्डू गोपाल की सेवा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आप मुझसे पूछो. My son, when he was just like 6 months old, 7 months old, I remember he'll get up and he'll cry. He wants to eat something. And then he poop after 1 hour. Then again he wants to eat something. Then again he will do the same thing. Then he wants proper attention. If I leave him alone, he will fall from the bed. He needs the maximum attention. यहाँ पे लोग चाय पिला रहे हैं लड्डू गोपाल को, फिर कॉफी पिला रहे हैं, लड्डू गोपाल को हैट पहना के स्कूटर में घुमा रहे हैं, क्योंकि दैट इज इजीली अवेलेबल. ये कोई भावमयी सेवा नहीं है. पड़ोस है ना, एक मतलब पड़ोसी है तो उनके भी लड्डू गोपाल है, तो मैं गया तो मैं बैठने जा रहा था, अरे रुक 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 क्या हुआ, देखिए लड्डू गोपाल बैठे होते हैं. तो क्या कर रहे थे सारा परिवार, वो मैच देख रहे थे. वो लड्डू गोपाल की मैच देख रहे थे. सो यू नो व्हाट, अब ये इसको क्या कॉन्शियसनेस बोलोगे? चाय पिलाएं. ये कॉन्शियसनेस दिखने में तो लगती है प्योर डिवोशन है, बट इट्स स्टुपिडिटी ना. Whatever we are not doing according to scriptures is not recommended or acceptable. Krishna is Bhagavan Janardhan. Krishna may be getting happy by watching cricket match, but I will not do that with my deities. चलो बैठ के मूवी देखते हैं. ठीक है. तो I know I have seen so many people like that. I have seen big jokers more than that also. ठीक है. But let's just leave it now. हम सब करते हैं, हम सब करते हैं. विंडो में टोकरी में लेकर आते हैं, बंदर लेके चले जाते हैं कभी कभी. क्या करोगे तुम? अच्छा, पूरी झूठे हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से भगवान को उठा रहे हैं. इट्स वेरी ऑफेंसिव टुवर्ड्स द लॉर्ड आल्सो. हमें जज नहीं करना चाहिए ना. हमें जज नहीं करना. सी, हम यहाँ पे जज नहीं कर रहे उनको. नहीं मतलब मैं इनको बता रहा था कि ये गलती ना करें. ये भी है. मैं भी पहले लेके जाता था, मतलब अभी भी लेके जाता हूँ. जब भी कहीं जाता हूँ अपनी डिटेल्स पूछो, हर जगह लेके जाता हूँ. आज सुबह मैं मॉर्निंग में 5 बजे आऊँ ना ड्रेसिंग करने,
तो आज मैं अपने घर में ठाकुर जी पूजा नहीं कर पाया, मुझे जल्दी आना था, वी हैड टू गो टू एमबीडीए, सो मेनी थिंग्स वी हैड टू डू। तो हम ये तो हमेशा मैं घर में पूजा करके घर से निकलता, 5 बजे पूजा कर लेता हूँ। अब मैं शालिग्राम गिरिराज लेकर आया और वर्शिप हुए, वो वहीं पे बैठे ऑल्टर, बट मैं वो कैरी करके तो घूम नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज जरूर है कि मुझे कोई लैंड खरीदनी होती है और कोई मैं लैंड अगर कुछ हो जाए तो मैं उसको अपने ठाकुर जी लेके जाता हूँ गिरिराज को, गिरिराज व्हाट डू यू थिंक, दिस लैंड वुड बी गुड और नॉट, ओनली दैट मच। वो भी गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में उतर जाएंगे, well, you know this because these things like ये मेरा अपना सेंटिमेंट है। if I'm taking any decision in my life I'll always prefer कि मुझे पता है कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो मैं अपने गिरिराज लेके जाऊंगा साथ। The first ride will be with the गिरिराज in the car. This is not for my enjoyment, for the enjoyment of the Lord, right? इसीलिए गृह प्रवेश में हम पहले क्या करते हैं नॉर्मली, तो हम लोग पहले मैं तो बल्कि बिकॉज यू इवॉल्व विद टाइम, गृह प्रवेश सबसे पहले हमें ये होता है, आप पहले घर की दृष्टि उतारते हो, तोड़ते हो नारियल और फिर घर के अंदर घुसते हो with the deities, and then you take the deities around in the house. Gaurita, this is your new house. This is okay. This is acceptable. But not this ki like, अरे लस्सी दे दो भैया, लस्सी लस्सी पी रहे ठाकुर सागर झूठे हाथ से सर्विस कर रहे हो, दिस इज नॉट डन। ठीक है, तो ये बस है, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम ये जज नहीं करते वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ऐसा नहीं करना। एनी अदर क्वेश्चन? Worshipping of any deity is not easy. Worship of any deity is not easy, but definitely Gaurita is easy in terms of not taking offenses, and it's easy to dress Gaurita. ठीक है, हाँ हाँ भाई, भगवान कृष्ण कर सकते हैं ना, हम उनके दोस्त छोड़ना है। मैं उनका दोस्त इस समय नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ बताता हूँ कि मेरे पास वो बॉडी है जिसमें 9 छिद्र है और 9 छिद्र से कॉन्टिन्यूसली आई एम टेकिंग आउट सम शिट, गंदगी निकल रही है मेरी बॉडी में से, कान में से, नाक में से, मुंह से, यू नो। उसके अलावा आई एम ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट समटाइम नंदग्राम स्कूल, समटाइम ठाकुर जी सेवा, समटाइम माय फ्रेंड, समटाइम अबाउट समथिंग एल्स, समथिंग अबाउट माय फैमिली, समथिंग अबाउट मनी, समथिंग अबाउट समथिंग एल्स। So I'm not completely Krishna conscious. Get your point? So Krishna was doing that, his friends were doing it, but we have to understand that they are Nitya Parikar of the Lord. We are not Nitya Parikar. हम वो लोग हैं जो अपनी साधना से या कृपा से सिद्धि प्राप्त करके भगवान की सेवा में जाएंगे। जो नित्य परिकर है भगवान के, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब और ये कॉन्शियसनेस में करते हैं, बाबा जी है, बाबा जी के पास गया एक बार मैं, तो मैंने बोला बाबा तो मिले वो खावे वो, कहते मैंने अभी भगवान ठाकुर जी के लिए वो बनाए हैं, क्या नाम है, चावल बनाए हैं, पुलाव। वो भाई सब पुलाव उन्होंने भगवान को भोग लगा रखे थे, ऐसा महक रहा था उनका रूम, कुटिया उनकी, वो पुलाव की उन्होंने प्लेट भगवान के सामने तो उठाई की, तो बैठ जाओ बाबा जी की प्लेट में, ठाकुर जी की प्लेट से उन्होंने पाया। भैया हम तो सखा है कृष्ण बलराम के, उनका भाव है, लेकिन वो सखा है कृष्ण बलराम के। मैं पिछले 18 साल से तो मैं वृंदावन में हूँ, मैं उनको भजन करते हुए देख रहा हूँ उस कॉन्शियसनेस के साथ, क्यों कृष्ण बलराम के सखा है। पता नहीं उससे भी कितने 10 साल पहले के वो वृंदावन में आया, उसी प्लेट में खाते थे भगवान को भोग लगाते, तो बाबा जी मैं कितनी प्लेट रखूंगा अपने, और फिर उसी प्लेट को वो ब्रज रस से धो के दोबारा रीयूज कर लेते। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो भगवान की प्लेट हो, कभी गलती से झूठी हो जाए तो उसमें थोड़ा ब्रज रस से अगर हम धो लें तो दैट कैन बी रीयूज्ड। तो ये बेटा चेतना में फर्क है, समझ रहे हैं?
देखो डीटी वर्शिप के लिए कोई ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सोसाइटी में होते हैं तो जो रूल्स और रेगुलेशंस बने होते हैं वो हमारे प्लेसमेंट के लिए होते हैं। 16 माला करने में मुझे स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। हाँ, चाय कॉफी छोड़ी नहीं है मैंने, प्याज लहसुन में खा रहा हूँ, सब चीजें मैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या डू आई रियली डिजर्व टू डू डीटी वर्शिप? नो, उन्होंने, ठीक है ना। तो जब मैंने हरिनाम के लिए प्रैक्टिस करी, हरिनाम दीक्षा हो गई 2 साल रहने के बाद, स्ट्रांगली फॉलो करने के बाद, फिर 5 साल और ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करने के बाद क्या किया मैंने, ब्राह्मण दीक्षा हो गई 4-5 साल follow करने। तो ऑलरेडी 7-8 साल का मेरा कुछ सेवा है, साधना है ना, उसके बाद मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो रही है। तो आई वुड बी लाइक स्ट्रॉन्गर। तो दैट टाइम इफ आई एम एक्सेप्टिंग द डीटी इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, घर में डीटीज लेकर आते हैं, तो अभी ज्यादा क्लास नहीं हो इसके बाद कुछ। बस लाएंगे कहाँ पे? कितने बजे? 5 वो तो जाओ यार, सॉरी। एनीवेज जस्ट कट शॉर्ट कि वी मेक स्टैंडर्ड्स हाई एंड आफ्टर सम टाइम वी वांट टू गिव अवे द डीटीज। have some sleep time and they have dinner and every day they do homework every day. And then if somebody wants to eat that now, then they're going to eat it from the dad. No, no. You should have 2 boxes, empty box, another box, and 1 container. You put in the container, offer to the Lord, take it out, put it in the another box. And whatever you want to eat, you can eat from another box. Out. Sorry. Vanchakal Madhurvesha. Vikas Indra. अनंत कोटि वैष्णव जिंदगी। कल थोड़ा टाइम से शुरू करेंगे, सॉरी।